Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. and battle it out with a test. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Yes, good evening to all of you. Good evening to all of you. So everyone please confirm beta, am I audible, am I visible clearly to all of you? Audio video clear एक बार सभी लोग confirm कर देना. Audio video is clear to everyone. Let me check also. Yes, तो audio video clear है. So in this class, आज की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो in the last class we have discussed about the theodolite. तो हम लोगों ने थियोडोलाइट सर्वे का अपना डिस्कशन किया था. यस, तो बेसिक थियोडोलाइट क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द थियोडोलाइट दैट वी हैव डिस्कस्ड, और इसी को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज थियोडोलाइट का डिस्कशन हम लोगों ने इसीलिए किया था बिकॉज द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज गोइंग टू बी टेक्योमेट्री. तो टेक्योमेट्री सर्वे की बात करने वाले हैं आज हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे. तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल, थ्योरी क्या है स्टेक्योमेट्री की, दैट वी आर गोइंग टू कवर इन टुडेज क्लास. यस, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल और वॉचिंग दिस क्लास फर्स्ट टाइम. तो आई एम क्षितिज सचान. आई हैव कंप्लीटेड माई एमटेक इन स्ट्रक्चर्स, qualified gate 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of various states. My teaching experience in the field of gate and ESC is more than 5 years. I am having 3 years research experience too. और सब्जेक्ट जो मैं डील करने वाला हूँ, आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन सर्वेइंग एंड आरसीसी. दैट आई विल आल्सो कवर फॉर द एग्जाम गेट, ईएससी और जो भी आपके स्टेट्स के एग्जाम होने वाले, एई और AEE एग्जाम for that or SSC JE exam. The discussion is going to be useful for all of you. This is my referral code, that is KK Aston. With the help of this code, you all can activate your free plan.
तो आप सभी अपने फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो फॉर दैट यू जस्ट नीड डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप। आप सभी को अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है एंड यूज दिस कोड दैट इज KKS10 टू एक्टिवेट योर फ्री प्लान। In the free plan of Unacademy, what you will get, special classes will be there, quizzes will be there, live test series will be there, and you can also participate for the Unacademy Combat. आप इन सभी फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं just by downloading the app and activating your free plan. If you want to start your preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way, you can plan your subscription. Two types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In the case of Plus subscription, what you will get? So live classes will be there, crash courses will be there, weekly test will be there, doubt solving sessions will there. So every fourth class on the Plus platform will be related to your doubt. Rank improvement batches will be provided to you. Subject we are going to cover in both language, English and Hindi. There will be no language barrier. So regular batches will be there for GATE and ESE. So these are the features of the Plus subscription. One more option is available, that is Iconic. In the case of Iconic, what you will get? So whatever features I have explained for the Plus, they are already included in the case of Iconic. In additional to Plus features, you will get study planner will be there, personal coach, personal mentor will be there, study material will also provided to you, study booster sessions will there, and personalized test analysis will be there. So these are the features of Plus and Iconic subscription. You can plan as per your need. एंड दिस इज द डिटेल ऑफ द न्यू बैच। तो गेट 2022 के लिए आपका 8 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ प्लस पे। यस, तो यू ऑल कैन यूज माय रेफरल कोड दैट इज KKS10 while completing your subscription process to avail 10% off on your subscription cost. Similarly, गेट 2023 के लिए भी आपका 8 मार्च से बैच स्टार्ट हुआ है। तो यस, जस्ट कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस एंड ज्वाइन दीज बैचेस। एंड दिस इज द डिटेल ऑफ द टेस्ट सीरीज। तो गेट, ESE और SSC JEE एग्जाम के लिए Unacademy is providing you free test series. You all can follow this schedule. इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप गेट और ESE और SSC JEE की टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। तो दिस इज द शेड्यूल फॉर SSC JEE एग्जाम एंड दिस इज द शेड्यूल फॉर सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के लिए। टॉपिक वाइज टेस्ट विल बी देयर एंड फुल लेंथ टेस्ट विल बी देयर। तो शेड्यूल इज मेंशन, प्रिपेयर विद जसपाल सर। तो आप सभी इस शेड्यूल को फॉलो करके सभी टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। This is my Unacademy profile. You can search this name on the Unacademy app or you can visit this link. This link is provided in the description box to attend all the free classes related to the transportation engineering. तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की क्लासेस को अटेंड करने के लिए, सर्वेइंग की क्लासेस को अटेंड करने के लिए और RCC और CPM की क्लासेस को अटेंड करने के लिए यू कैन फॉलो दिस प्रोफाइल. You will get the regular updates about all my upcoming special free classes. This is the Telegram group. So we have created a Telegram group for all of you, that is Unacademy, GATE and ESE CE. In this Telegram group, you will get all the PDFs of YouTube classes. तो सभी YouTube classes के PDF मिलेंगे and you will also get the link of all my upcoming special classes. Yes, these are the Facebook pages. All of you can join these pages to get connected with us. आप सभी इन पेजेस के थ्रू हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन होने वाला दैट इज रिलेटेड टू द टेक्योमेट्री सर्वे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने हर सर्वेइंग के बारे में देखा था, तो टेक्योमेट्री सर्वे से होगा क्या? तो टेक्योमेट्री सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या? तो किसी भी सर्वे का ऑब्जेक्टिव अभी भी वही है, टू प्रिपेयर द प्लान और मैप। और प्लान और मैप बनाने के लिए आपको पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन करना पड़ेगा और पॉइंट्स की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मुझे लीनियर मेजरमेंट करने पड़ेंगे, मुझे एंगुलर मेजरमेंट करने पड़ेंगे। तो अभी कल देखा था हम लोगों ने थियोडोलाइट के बारे में। तो विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, अगर नॉर्मल थियोडोलाइट की बात करें बेटा, तो इससे आप कल क्या कर पा रहे थे? आप हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर कर पा रहे थे और वर्टिकल एंगल को मेजर कर पा रहे थे। इन द टेक्योमेट्री वी विल यूज द इंस्ट्रूमेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी योर टेक्योमीटर। अब मैंने क्या बोला? टेक्योमीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। टेक्योमीटर एक्चुअल में होता क्या है? तो इट इज अ स्पेशल थियोडोलाइट। इट इज अ स्पेशल थियोडोलाइट fitted with स्टेडिया। तो अब आपके उसी थियोडोलाइट में आपने स्टेडिया फिट कर रखे हैं और अगर स्टेडिया फिटेड हैं तो इसको आपने बोल दिया टेक्योमीटर। विद द हेल्प ऑफ टेक्योमीटर, अब क्योंकि थियोडोलाइट से आप हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आप उसमें स्टेडिया प्रोवाइड करने वाले हैं,
just by providing the stadia on the theodolite we will able to measure the distances also. अब आप डिस्टेंस भी मेजर कर पाएंगे, तो वी विल मेजर द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, इनका डिस्कशन होगा और ये कैसे करते हैं, इसके पीछे की क्या थ्योरी है, ऑल दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन. एज ऑफ नाउ आई हैव डिस्कस कि व्हाट डू यू मीन बाय द टेक्योमेट्री. तो टेक्योमेट्री में जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा दैट इज गोइंग टू बी द टेक्योमीटर. और टेक्योमीटर क्या होने वाला, इट इज द स्पेशल थियोडोलाइट फिटेड विद द स्टेडिया. अब इसका गेम समझते क्या है, अब हम एलिवेशन भी मेजर कर लेंगे, डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे. तो इसके पहले सबसे पहले आप बात करें, अगर मैं नॉर्मल थियोडोलाइट के टेलीस्कोप की बात करूं, तो कल आप बोल रहे थे सर आई साइड विल बी देयर, ऑब्जेक्टिव साइड विल बी देयर, और यहां पर आपने प्रोवाइड कर रखे थे क्रॉस हेयर, ये प्रोवाइडेड डायाफ्राम वर देयर. तो इसी के करस्पॉन्डिंग आप क्या करते थे, आप किसी भी पॉइंट पे स्टाफ रीडिंग लेते थे. तो फॉर एग्जांपल आई एम रिप्रेजेंटिंग द थियोडोलाइट विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप ओनली. तो दिस इज योर आई साइड, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव साइड, यहां से आप कहीं देखने वाले हैं. और जस्ट जहां पर भी आपका स्टाफ और ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज गोइंग टू बी योर स्टाफ रीडिंग. ये इस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ कोई लेवलिंग में भी आपने यही किया था. तो टेलीस्कोप से स्टाफ रीडिंग कैसे लेते हैं, इसका सिंपल सा गेम था कि ये जो इंटरसेक्शन है क्रॉस हेयर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये स्टाफ में कहां पर इंटरसेक्ट करेगा. तो अगर इसको मैं दूसरे व्यू में अगर बात करूं, तो फॉर एग्जांपल दिस इज योर स्टाफ, ये आपका कोई स्टाफ था, और आप जो स्टाफ रीडिंग मेजर करते थे, यू आर मेजरिंग द स्टाफ रीडिंग करस्पॉन्डिंग टू दिस. तो दिस वाज योर स्टाफ रीडिंग. ऐसा सब कुछ होता था थियोडोलाइट के केस में, अगर मुझे स्टाफ रीडिंग लेनी होती थी. यस, तो इन दिस वे वी कैन टेक द स्टाफ रीडिंग. अब मैंने क्या बोला, इसी टेलीस्कोप में मैं स्टेडिया फिट कर देता हूं, और स्टेडिया फिट करने के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं और उन चेंजेस को हम कैसे यूज करेंगे, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. तो फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम टेकिंग दिस टेलीस्कोप, और इस टेलीस्कोप में आपने फिट कर रखा है स्टेडिया is also fitted. So when you will see the cross section, you will find there will be 3 points like this. तो इसकी हम लोग बात करें क्या होने वाला है. तो एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, जो तुम्हारा डायाफ्राम था, द डायाफ्राम वाज समथिंग लाइक दिस. और इस डायाफ्राम में नाउ वी आर, ये तो नॉर्मल था थियोडोलाइट में, तो नाउ वी आर प्लेसिंग सम मोर मार्किंग लाइक दिस इज द स्टेडिया. इस तरीके से आपने 2 मार्क और प्रोवाइड कर रखे, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर अपर स्टेडिया एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लोअर स्टेडिया. तो यहां पर आपने डिफाइन कर रखा अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया, और जो नॉर्मल आपका इंटरसेक्शन पॉइंट था, इसी को मैं बोल सकता हूं बेटा एक्सियल स्टेडिया. यस, तो अब गेम क्या होगा कि अब अगर आप स्टाफ रीडिंग लेने की बात करेंगे, इफ वी टेक द स्टाफ रीडिंग एज ऑफ नाउ, तो इस स्टाफ रीडिंग को लेने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. तो मैं नहीं लगता है नाउ आई विल गेट द 3 स्टाफ रीडिंग्स. अब टोटल मुझे 3 स्टाफ रीडिंग्स मिलने वाली, एंड दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. तो यू विल गेट द स्टाफ रीडिंग समथिंग लाइक दिस. अब आपको टोटल 3 स्टाफ रीडिंग मिलेंगी करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया. वी विल गेट दिस रीडिंग, इस रीडिंग को आप बोल सकते हैं S1. अभी देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है. करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया यू विल गेट द रीडिंग दैट इज गोइंग टू बी S3, एंड करस्पॉन्डिंग टू द एक्सेल स्टेडिया वी आर गोइंग टू गेट रीडिंग दैट इज S2. ये इंस्ट्रूमेंट, ये लेवल इंस्ट्रूमेंट, ये टेलीस्कोप और ये आपका स्टाफ कितना दूर रखा हुआ है, कैन वी मेजर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. यस, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वी कैन मेजर विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप. तो चेन और टेप की हेल्प से आप इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकते हैं. यस और नो. तो फर्क सिर्फ इतना हुआ है कि जो नॉर्मल थियोडोलाइट में आपको एक स्टाफ रीडिंग मिल रही थी, अगर आप टेक्योमीटर यूज करेंगे, बिकॉज व्हाई वी आर सेइंग दिस इज द टेक्योमीटर, बिकॉज इन दिस वी हैव प्रोवाइडेड द स्टेडियाज आल्सो. तो आई विल गेट 3 स्टाफ रीडिंग. बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. तो ये टेक्योमीटर का गेम हो गया. अब इस टेक्योमीटर में इस स्टेडिया प्रोवाइड करने से
ऐसा क्या हुआ कि अब आप बोल रहे हैं सर हम एलिवेशन भी मेजर कर लेंगे, हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे, हम वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर कर लेंगे, तो दैट वी विल सी। बट उसके पहले कुछ बेसिक बात कर लेते हैं, उसके पहले कुछ बेसिक बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लेट्स से ये अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच का जो इंटरवल होता है, अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच में जो गैप है बेटा, इसको आप बोलते हैं स्टेडिया इंटरवल, इसको आप बोलते हैं स्टेडिया इंटरवल, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल आई। सिमिलरली अपर एंड लोअर स्टेडिया के करस्पॉन्डिंग जो रीडिंग आ रही थी उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल एस से, एंड कैपिटल एस इज गोइंग टू बी स्टाफ इंटरसेप्ट। इस कैपिटल एस को हम लोगों ने क्या बोला, दैट इज गोइंग टू बी स्टाफ इंटरसेप्ट। ये बात भी क्लियर है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अब मैं बात करूंगा, हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, वो इक्वेशन हम लोग डिराइव भी करेंगे, बट एज ऑफ नाउ पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो d इज इक्वल टू के एस प्लस सी, d इज गोइंग टू बी के एस प्लस सी, दिस इज योर टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, तो बहुत ध्यान से समझना इन चीजों को। ये आपकी होती टेक्योमेट्रिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हम लोग डिराइव करेंगे। तो d इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, s इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, k और c के बारे में मुझे नहीं पता है। तो k और c की अगर बात करें तो k इज गोइंग टू बी योर मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, k is going to be your multiplying constant and c is going to be your additive constant, c is going to be your additive constant। अब ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या होगी ये सब हम लोग बात करेंगे, तो सभी डिटेल में बात करेंगे, बट बेसिक से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। अगर मैं बोलूं बेटा एक नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके लिए k की वैल्यू 100 है और c की वैल्यू 0 है, k की वैल्यू 100 है और c की वैल्यू 0, इस तरीके के टेलीस्कोप को आप बोल सकते हैं दैट इज योर एनालिटिक टेलीस्कोप। एनालिटिक टेलीस्कोप, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको पता होनी चाहिए। एनी टेलीस्कोप हैविंग मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एज 100 एंड एडिटिव कांस्टेंट एंड 0, तो ऐसे टेलीस्कोप को हम लोग बोलने वाले दैट इज गोइंग टू बी योर एनालिटिक टेलीस्कोप। तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है कि फॉर एनालिटिक टेलीस्कोप व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के एंड सी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के एंड सी, के की वैल्यू क्या होती है और सी की वैल्यू क्या होती है। तो दिस पॉइंट इज डायरेक्टली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ। तो अब मैं समझ गया कि मैं किसी भी तरीके से फील्ड में इस स्टाफ इंटरसेप्ट को अगर मेजर कर लूं, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, मैं डिस्टेंस अभी नहीं मेजर कर रहा हूं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस इक्वेशन की हेल्प से, अगर उस इंस्ट्रूमेंट के लिए मुझे k की वैल्यू पता है, अगर उस इंस्ट्रूमेंट के लिए मुझे c की वैल्यू पता है, और किसी भी तरीके से मैंने स्टाफ इंटरसेप्ट करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया, अगर ये स्टाफ इंटरसेप्ट मेजर कर लिया फॉर एनी डिस्टेंस d, तो विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टेलीस्कोप और द टेक्योमीटर एंड द स्टाफ। यस और नो, कर सकते हैं। चलो एग्जांपल के लिए बात कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए बात करते हैं कि मान लो अपना टेलीस्कोप जो था दैट इज एनालिटिक टेलीस्कोप, और आपने सॉरी, आपने कहीं पे भी ये सर्वे किया, आपको नहीं पता इन दोनों के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, और आपने स्टाफ इंटरसेप्ट मेजर किया। फॉर एग्जांपल दिस स्टाफ इंटरसेप्ट वी आर गेटिंग दैट इज 1 मीटर फॉर एग्जांपल। तो व्हाट विल बी दिस, एंड वी आर यूजिंग द एनालिटिक टेलीस्कोप, हमने टेलीस्कोप जो ले रखा है दैट इज एनालिटिक। तो d इज गोइंग टू बी ks प्लस c, फॉर एनालिटिक टेलीस्कोप k इज गोइंग टू बी 100, s इज गोइंग टू बी 1 एंड c इज गोइंग टू बी 0। तो मैं नहीं लगता बेटा द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टेक्योमीटर और द एनालिटिक टेलीस्कोप एंड द स्टाफ इज गोइंग टू बी 100 मीटर। तो क्या आपने इस 100 मीटर को फील्ड में मेजर किया है? तो हम लोगों ने फील्ड में तो इस डिस्टेंस को मेजर नहीं किया कि सर विद द हेल्प ऑफ चेन, विद द हेल्प ऑफ टेप, वी हैव नॉट मेजर्ड दिस डिस्टेंस, जस्ट बाय मेजरिंग द स्टाफ इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट की मदद से आपने क्या कर लिया, जस्ट वी हैव मेजर्ड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द स्टाफ। Yes, I hope that point is also clear to all of you. ये पॉइंट भी सभी को क्लियर है, yes or no? तो ये तो एप्लीकेशन हो गया, ये तो बात समझ में आ गई कि हाँ भाई कैसे हम लोग टेक्योमेट्रिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं।
डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अभी मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस। हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस की भी बात करेंगे आगे चल के। तो चलो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ द टेक्योमीटर। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, अब इस इक्वेशन को डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द थ्योरी ऑफ टेक्योमीटर। तो ऐसा कैसे ये इक्वेशन आगे d इज इक्वल टू के एस प्लस सी कैसे आ गया, और इन मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू को भी हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए पहले कुछ आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। तो जैसे आपने बताया सर, s इज गोइंग टू बी द स्टाफ इंटरसेप्ट, s इज गोइंग टू बी द स्टाफ इंटरसेप्ट। तो हम लोग डायग्राम में भी इसकी बात करने वाले, डोंट वरी फॉर दैट। I आपने बोला सर दैट इज गोइंग टू बी द I इज गोइंग टू बी द स्टेडिया इंटरवल, या आपने स्टेडिया इंटरवल की बात कर ली। F इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो F की भी हम लोग बात करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। F इज गोइंग टू बी द फोकल लेंथ। D मैं डिफाइन कर रहा हूं, दैट इज द स्मॉल d, और स्मॉल d डिस्टेंस ऑफ द, लेट्स सी कहां से कहां तक आपने डिस्टेंस को डिफाइन किया है। तो डिस्टेंस ऑफ वर्टिकल एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ vertical axis of instrument from optical center of objective lens। तो अभी एक एक करके पहले टर्म समझ लेते हैं, फिर देखेंगे इनको कहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो डोंट वरी फॉर दैट। सर बचपन में कहीं पढ़ा था u और v के बारे में भी। तो आप u क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। यस, इफ आई टॉक अबाउट द स्मॉल v, स्मॉल क्या होता था, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो देखो भाई, कम से कम इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इतनी बातें पता होनी चाहिए। जरा एक बार देख लेते हैं कहां पर हम लोगों ने इतनी बातों को डिफाइन कर दिया है। तो लेट्स सी। तो आपने बोला सर एक कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो वी हैव प्लेस्ड आवर इंस्ट्रूमेंट समथिंग लाइक दिस। आपने कुछ इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर रखा है विद ऑन द ट्राइपॉड, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर टेलीस्कोप। दिस इज गोइंग टू बी योर टेलीस्कोप, आई साइड, ऑब्जेक्टिव साइड, स्टेडिया, सब कुछ लगा हुआ है। एंड दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन ऑफ साइट। लेट्स से यहां पर हमने लगा रखा है कि स्टाफ, वी हैव प्लेस्ड द स्टाफ, दैट इज समथिंग लाइक दिस। इंस्ट्रूमेंट से स्टाफ तक के बीच के डिस्टेंस को आप पहले ही बोल चुके हैं, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल डी, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल डी। कैन आई से दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। सुनो, तो आपने बोला सर हेयर यू विल फाइंड द आई साइड, हेयर यू विल फाइंड द ऑब्जेक्टिव साइड। तो कैन आई से दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी वी। ये डिस्टेंस आपने डिफाइन कर रखी वी। देखो क्या बोला आपने, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इमेज तो यही बनने वाली ना, दिस इज गोइंग टू बी वी। ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर से जो आपका ऑब्जेक्ट है, उस डिस्टेंस को आपने बोला दैट डिस्टेंस इज स्मॉल यू, दैट डिस्टेंस इज स्मॉल यू। आप सभी को पता है व्हेनेवर वी विल यूज द टेक्योमीटर, तो आई विल गेट द 3 स्टाफ रीडिंग्स। टोटल मुझे 3 स्टाफ रीडिंग मिलने वाली है। तो कैसे मिलेंगे दैट वी विल सी। तो इसको हटा दो, इसका पूरा गेम देख लेंगे कैसे होने वाला है। तो डोंट वरी फॉर दैट, पहले बेसिक टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। वर्टिकल, इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस से ऑब्जेक्टिव तक की डिस्टेंस को बिला आपने बोला दैट इज द स्मॉल डी। अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया के बीच के डिस्टेंस को आपने बोला स्टेडिया इंटरवल। और अभी हम लोग देखेंगे जो स्टाफ रीडिंग्स मिलने वाली हैं, उन रीडिंग्स को हम लोग बोलने वाले हैं, उन रीडिंग्स के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्टाफ इंटरसेप्ट। तो U क्या है, V क्या है, स्मॉल d क्या है, कैपिटल D क्या है, सभी लोग कंफर्म कर दो। यहां तक का डिस्कशन क्लियर है, तो फिर हम लोग आगे बात करें। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ इट, देन वी कैन मूव फर्दर। आगे का डिस्कशन भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए जरा, तो इमेज कहां पर बनेगी, तो आप सभी ने बचपन में कुछ पढ़ रखा है, दैट वाज समथिंग लाइक दिस। तो करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, करस्पॉन्डिंग टू द लोअर स्टेडिया, यही तो होने वाला गेम पूरा। बोलो यस और नो। और इमेज फोकल लेंथ अभी आपने नहीं दिखाया,
तो फोकल लेंथ विल बी समथिंग लाइक दिस, फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस। तो मैं रिप्रेजेंट करता हूं, तो लिसन केयरफुली, जहां से भी ये कट करेगा, तो फॉर एग्जांपल दिस इज द सिचुएशन, यस, तो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द सिचुएशन। कैन आई से दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी, ये पॉइंट आपको मिल रहा है, ये पॉइंट आपके विजिबल है, यस और नो? इस पॉइंट को कैन आई से दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी स्मॉल एफ, इसी डिस्टेंस को आपने बोला फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये रीडिंग यू आर गेटिंग करस्पॉन्डिंग टू द अपर स्टेडिया, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस इज S1, दिस इज गोइंग टू बी S3, दिस इज गोइंग टू बी S2, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को बेटा आपने बोल दिया है दैट इज द स्टाफ इंटरसेप्ट एंड दैट इज गोइंग टू बी S, दैट इज गोइंग टू बी S। तो ये पूरी कहानी है, ये पूरी कहानी है। आई होप सभी को ये डिस्कशन समझ में आ गया। बेटा अगर मैं चाहूं तो सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट से क्या मैं लिख सकता हूं, 1/v, सिमिलर ट्रायंगल कंसेप्ट से I/v, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी I, दिस इज गोइंग टू बी v, विल बी इक्वल टू S/u, बोलो, विल बी इक्वल टू S/u बेस्ड ऑन द सिमिलर। अगर मैं इसी से 1/v की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी S/ui। 1/v की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1/v will be equal to I/v will be equal to S/u. We are calculating the 1/v, that is going to be S/ui. Let's say this is your equation number 1. Let's say this is your equation number 1. बिल्कुल सही बात है। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए अगर बेटा बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करें, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आपने गेम पढ़ रखा है, 1/f will be equal to 1/u plus 1/v, यस और नो? अभी आपने फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी मैं 1/v की वैल्यू को पुट करता हूं, तो 1/f इज गोइंग टू बी 1/u, और 1/v की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, दैट वाज कितनी वैल्यू, S/ui, S/ui, यस और नो? बोलो। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर लूं तो कैन आई राइट 1/f विल बी इक्वल टू 1/u को अगर कॉमन ले लें तो 1 प्लस दिस इज गोइंग टू बी S/i। बोलो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यहां से बेटा अगर मैं u की वैल्यू निकाल लूं, यहां से अगर मैं u की वैल्यू निकाल लूं तो f एंड दिस इज गोइंग टू बी 1 प्लस S/i, 1 प्लस S/i। बोलो, कर सकते हैं ऐसा? इसी चीज को अगर मैं तरीके से लिख दूं तो क्या मैं इसी एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, f प्लस f/i इंटू s। बोलो, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ u। अब सर ये u की वैल्यू आपने क्यों निकाली है, ये u की वैल्यू आपने क्यों निकाली, समझो जरा ध्यान से। वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ u। अरे भैया टेलीस्कोप तुम्हारा है, इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा है, वर्टिकल एक्सिस से ऑब्जेक्टिव तक के बीच की डिस्टेंस तो तुम्हें पता ही होगी ना। मेरी इच्छाएं थी, मैं निकालना चाह रहा था कैपिटल डी की वैल्यू को, मैं निकालना चाह रहा था कैपिटल डी की वैल्यू को, और इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल डी प्लस यू, दैट इज गोइंग टू बी स्मॉल डी प्लस यू। और इसी वजह से आपने यू की वैल्यू को निकाला, तो मैं लिखता हूं बेटा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का था, मेरा इंटरेस्ट तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का था, एंड दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विल बी इक्वल टू u प्लस, एंड दिस इज गोइंग टू बी योर स्मॉल डी। नहीं कुछ गलत लिख दिया, दिस इज गोइंग टू बी, हाँ सही है, u प्लस स्मॉल डी, या d प्लस यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा आपने u की वैल्यू अभी निकाली, f प्लस f/i इंटू s प्लस d। बोलो, लिखते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ऐसा कि नहीं लिख सकते? अरे यार, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, f/i एंड दिस इज गोइंग टू बी s, और इन दोनों को ऐड कर देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी प्लस f प्लस d। बोलो, कैन आई राइट लाइक दिस, कैन आई राइट लाइक दिस, यस और नो? बेटा अगर तुम ऐसा लिख सकते हो तो मैं लिख सकता हूं d इज इक्वल टू, इस पूरे टर्म को मैं बोल देता हूं k, दिस इज गोइंग टू बी k, दिस इज गोइंग टू बी s, और इस पूरे टर्म को मैं बोल देता हूं c, इस पूरे टर्म को मैं बोल देता हूं c। तो द इक्वेशन यू आर गेटिंग दैट इज d इज इक्वल टू ks प्लस c। द इक्वेशन यू आर गेटिंग एज पर दिस एक्सप्लेनेशन दैट इज गोइंग टू बी d इज इक्वल टू ks प्लस c। बेटा तुम्हें नहीं लिखता, आज के बाद मैं जान चुका हूं, जहां पर k की वैल्यू जो है
K is our multiplying constant, K is our multiplying constant, और इसकी वैल्यू जो होने वाली है, अगर आपको नहीं गिवन है इंस्ट्रूमेंट की कुछ डिटेल आपको पता है, तो दिस इज गोइंग टू बी F अपॉन I. देख लो, K is going to be F upon I and C is going to be your additive constant. C is going to be your additive constant, or this additive constant will be equal to F plus D. Yes or no? अरे F क्या है? F is the focal length. F is the focal length. आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी, ये तो मुझे बताओगे. I स्टेडिया इंटरसेप्ट, स्टेडिया इंटरसेप्ट है, तो ये तो इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन है भाई, ये तो इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन है ना, कि कहां पर कितने दूरी पे आपने स्टेडिया को प्लेस किया है, ये तो मुझे आप ही बताओगे ना. डी क्या था? डी आपने बोला था सर वर्टिकल एक्सिस से, इंस्ट्रूमेंट के वर्टिकल एक्सिस से ऑब्जेक्टिव तक के बीच की डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच की डिस्टेंस को आपने बोला था डी. ये भी तो मुझे आप बताओगे. मतलब अगर मुझे किसी भी टेलीस्कोप के लिए, अगर मुझे किसी भी टेलीस्कोप के लिए F की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है और स्मॉल d की वैल्यू पता है, तो उसके लिए मैं K और C की वैल्यू निकाल सकता हूं. आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड C. एक तरीका तो ये कांस्टेंट निकालने का ये. अगर तुम्हें किसी भी टेलीस्कोप के लिए K की वैल्यू पता चल गई है, किसी भी टेलीस्कोप के लिए C की वैल्यू पता चल गई है, अब कुछ नहीं करना है. जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आप मेजर करना चाह रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ के बीच के केवल स्टाफ इंटरसेप्ट मेजर कर लीजिए, और जो करस्पॉन्डिंग स्टाफ इंटरसेप्ट होगा, विद द हेल्प ऑफ दैट स्टाफ इंटरसेप्ट ओनली वी कैन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं. यस और नो? वी कैन कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. यस और नो? तो बहुत सिंपल सा गेम था. अगर मुझे ये नहीं पता है, अगर मुझे सर इंस्ट्रूमेंट के बारे में F भी नहीं पता, I भी नहीं पता, D भी नहीं पता है, तो क्या मैं किसी भी टेलीस्कोप के लिए एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट निकाल सकता हूं? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं. तो एक मेथड तो ये था, जब आपको सारे स्पेसिफिकेशन पता है, वो आपने डिस्कस कर लिया. जब मेरे को स्पेसिफिकेशन पता थे, लाइक स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो मुझे F पता था, I पता था, D पता था. और अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द मेथड 2, तो आप एक फील्ड पे आप फील्ड मेजरमेंट करके भी इन दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं. कैसे? तो स्टेप 1 में बेटा क्या करो, स्टेप 1 में आपने इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किया. इस टेलीस्कोप का मल्टीप्लाइंग और एडिटिव कांस्टेंट मुझे नहीं पता है, मैंने यहां पर स्टाफ रखा और मैंने ये डिस्टेंस मेजर कर रखी. D1 इज नोन टू मी, तो इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ कितने कितने दूर है ये मुझे पता था, और इसके बेसिस पे मैंने यहां पर निकाल लिया बेटा स्टाफ इंटरसेप्ट. लेट्स से दिस स्टाफ इंटरसेप्ट इज S1. ये स्टाफ इंटरसेप्ट S1 है. इस कंडीशन के लिए अगर मैं चाहूं तो क्या मैं टेक्योमेट्रिक इक्वेशन लिख सकता हूं? यस. तो D1 इज गोइंग टू बी K1, K ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इंस्ट्रूमेंट तो बदलने वाले हैं नहीं. दिस इज गोइंग टू बी K और दिस इज गोइंग टू बी S1 प्लस C. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. अब क्या करते हैं, स्टेप 2 कर लेते हैं. अब आपने इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे डिस्टेंस पे प्लेस किया है. नाउ यू हैव प्लेस्ड द इंस्ट्रूमेंट सम डिफरेंट डिस्टेंस. लेट्स से दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी D2. ये डिस्टेंस आपकी D2 है. तो मैं नहीं लगता है जब डिस्टेंस बदल गई है तो स्टाफ इंटरसेप्ट की वैल्यू भी बदल जाएगी. द स्टाफ इंटरसेप्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी चेंज. और इस कंडीशन में अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं D2 इज इक्वल टू, क्या K और C की वैल्यू बदलेगी? क्या K और C की वैल्यू बदलेगी? द आंसर इज गोइंग टू बी नो, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट तो वही है ना, आपने केवल पोजीशन चेंज की है. तो दिस इज गोइंग टू बी KS2, दिस इज गोइंग टू बी KS2 प्लस C. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. जरा ध्यान से देखो बेटा, इस पूरी इक्वेशन में क्या क्या पता है आपको. ये D1 और D2 ये नोन है मुझे, ये D1 और D2 आर द नोन पैरामीटर. मैंने ही प्लेस किया था इंस्ट्रूमेंट और स्टाफ को अलग अलग पोजीशन पे. ये S1 और S2 भी मेरे को नोन है, ये S1 और S2 भी मेरे लिए नोन पैरामीटर है. बात कहां पर आ रही है? तो सिंपल सा, तो मुझे लगता है इस पूरे इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में देयर आर ओनली 2 अननोन, दैट इज K एंड C. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2
अगर आप इतना गेम समझ रहे हैं तो आप इक्वेशन 1 और 2 की हेल्प से किसी भी इंस्ट्रूमेंट के लिए के और सी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। फॉर एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी टेलीस्कोप यू कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एंड सी। और एक बार अगर आपको टेलीस्कोप के लिए के और सी पता चल गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, केवल स्टाफ इंटरसेप्ट लो और आप उनके बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आई होप द थ्योरी ऑफ द टेक्योमेट्री इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। टेक्योमेट्री क्या है, क्या क्या कर सकते हैं टेक्योमेट्री में, टेक्योमीटर क्या है, कैसे बन गया टेक्योमीटर हमारा, और टेक्योमीटर की इक्वेशन क्या है, और उस इक्वेशन की हेल्प से हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? तो बेटा यही आज का हमारा डिस्कशन था। आज हमने थ्योरी कवर कर ली है टेक्योमेट्री की, इस पे हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। वी विल सी द सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और हाउ टू कैलकुलेट द एलिवेशन, वर्टिकल डिस्टेंस भी कैसे मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्योमीटर। तो फॉर दैट आई विल डिस्कस द डिफरेंट केसेस इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लासेस में उन केसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये सभी डिस्कशन आपके लिए क्लियर है। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क योर डाउट इन द नेक्स्ट क्लास। आप नेक्स्ट क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर द टुडेज क्लास। और if you want to join the plus batches that the detail I have shared earlier, so for that you can follow these steps. Just visit the Unacademy app or website, select the exam you want to prepare for as GATE and DSE, select the type of subscription you want to take. To here I am explaining for the plus, then select the duration, so you can go for the 12-month or 18-month subscription. If you are a college pass out student और अगर आप कॉलेज में हैं, you can go for the 24-month subscription. The long-term subscription is going to be economical for you. Yes. So make sure you all are using this code, and just by applying this code while completing your subscription process with Unacademy, you will get 10% off on your subscription cost. Same process you can follow in the case of Iconic. Iconic के लिए भी आप same process follow कर सकते हैं. You can go for the 12-month or 24-month subscription. Again, the long-term subscription is going to be economical for you. To this code, make sure whenever you are completing your subscription process with Unacademy, you are using this code to avail 10% off on your subscription cost, and you can start your preparation under my guidance. Yes. Join this Telegram group if you have not joined yet. अगर आप लोगों ने इस Telegram group को join नहीं करा है, तो in this Telegram group you will get all the updates about all my upcoming special classes. तो सभी free classes के link आपको यहाँ पर provide किए जाएंगे. And you will also get the PDFs of the YouTube classes. And you can start your learning from these best channels of Unacademy. तो Unacademy GATE C और CH यहाँ पर हम लोग सिविल और केमिकल की क्लासेस कर रहे हैं. Similarly for other branches also there are some best channels जिनको आप फॉलो कर सकते हैं. You can recommend these channel to your other branch friends so that they can also start preparing for the various exam. So this was all about for the today's class. We will meet in the next class for further discussion of the Techometry. So do like and share the content, subscribe the channel. Thank you everyone. Keep learning.